एज अ नॉर्मल आउटसाइडर, सिंपल बॉय फ्रॉम अ सिटी लाइक कानपुर, भले ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो उड़ा तो मेरा ही मजाक रहे हैं. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ. दिस इज संस्कृति योर होस्ट. और आज हमारे साथ है इंडिया के सबसे फेवरेट अनुज कपाड़िया. यस, इट इज गौरव खन्ना. वेलकम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो गौरव, अनुज कपाड़िया सबके दिलों पे राज कर रहा है. And he entered a show which was already popular, and it was the TRP topper, and then you entered and made everyone crazy about Anuj. So how has this journey been? फैंटास्टिक. सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बिकॉज आई नो हाउ टेलीविजन इन इंडिया इज़, यू नो, एंड आई एम वेरी हम्बल्ड बाय द होल एक्सपीरियंस कि आई गॉट अ चांस टू वर्क विद राजन शाही, यू नो, irrespective of number 1, number 2. I didn't realize कि number 1 show है कि number 2 है. All I saw, the first call which I got, and they said we are calling from DKP production, and I said Rajan sir का production है. So I remember speaking to Ketki, my then creative, and she said कि it's his show, Rajan sir's show, and ऐसा ऐसा character है. And I said yeah, मैं सुना भी नहीं था क्या है, frankly. मैंने जैसे ही सुना DKP प्रोडक्शन, मैंने कहा यार ठीक है. आई डेंट इवन लिसन कि कितना लंबा है क्या है. देन आई रिमेंबर आई आस्क्ड केतकी कि आई वुड लाइक टू स्पीक टू राजन सर वंस, एंड ही वाज ट्रैवलिंग, ही वाज अब्रॉड, आई थिंक ही वाज इन ट्रांजिट इन अमेरिका सम प्लेस. सो आई रिमेंबर वी डिड अ online call with him, and he said, Gaurav, I am just between my flights, I will speak to you for 5 minutes. And I said, sir, whatever you say, whatever the character is, I am ready, I am doing it. So that's how Anuj happened. And उस समय I was doing something else. My whole personality and my look was a little different, because I come from that school of thought कि when I do a character, I should look the character. I always feel that. And इससे पहले मैं एक दूसरा शो कर रहा था जिसमें it was a fantasy show. I was doing Chandrakanta. So I had to come out from that, you know, mold, and I had to settle myself in this businessman, suave, rich, business tycoon, and you know, so that's why the specs and suits and the whole way, the whole body language. And then all thanks to the fans out there, they love Anuj, and you have, and सबसे बड़ा मैं ये बोलना चाहूँगा कि फैंस जनरली, जो मैंने पहले शोज़ किए हैं उसमें फैंस का एक टारगेट ऑडियंस होता था. जैसे मैंने कॉलेज शोज़ किए तो उसमें फीमेल फैंस होते थे, या यंग टीनेजर जो गर्ल्स हैं वो होती थी. फिर मैंने जब CID किया तो उसमें घर के बड़े भी फैंस होते थे, छोटे बच्चे बहुत फैंस होते थे. ऐसे ही मतलब मेरे हर शो में देयर वाज अ डिफरेंट टारगेट ऑडियंस. बट विद अनुज कपाड़िया एज अ कैरेक्टर इन अनुज, इन दिस शो कॉल्ड अनुपमा, आई एम सरप्राइज्ड कि देयर is no target audience as such, across ages, across I would say regions, across places. I get fan mails from a 4-year-old to a 85-90-year-old, and I get letters, I get gifts. So बड़ा अच्छा लगता है कि हाल ही में अभी हमारे सेट पे भी जितने लोग आते हैं ना, सो दे वर 4 generations. एक बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है, but he was here, and his guests were here along with him. And I remember they had somebody who was 93, then they had somebody who was 75ish, 55ish, and they also had a daughter who was 35, and then they made me speak to somebody abroad in Canada who was 16 and 9. So are you seeing the spectrum from a 9 to a 93, and they all loved Anuj Kapadia. So I was very humbled, I was very happy कि माँ बाप का आशीर्वाद है और भगवान की दया है और राजन सर का ट्रस्ट है कि ये सब हो रहा है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि नंबर 1 शो में आया, एंड जब अनुज वॉज इन फुल ग्लोरी एंड मान वॉज हैपनिंग, एंड यू नो वी टच्ड TRPs which were unheard in those times. In these times, you know, पहले ज़माने में होता था कि TRPs एक नंबर पे होती थी, बट I have not heard कि recent times में कोई 4.5 or 4.6 गया हो. So I'm very happy कि एक अच्छे शो में आके और अच्छा होना, it's God's blessing. Yeah. Also, apart from Anuj Kapadia, the Jodi, Rupali and Gaurav's Jodi, that's Anuj Anupama, jo, Man, it became a huge thing.
and you know every day on social media we see either Man trending or Gaurup trending. They want you guys to post the Man day pictures that you used to do earlier. So what would you say about this chemistry with her, and how has this love of fans been for Man? मैं बस यही बोलूँगा कि मान फैंस को मैं मान गया. दे आर फैबुलस बिकॉज बहुत टफ होता है कि एक रनिंग कैरेक्टर के साथ आप एक आउटसाइडर को एक्सेप्ट करना बिकॉज ऑलरेडी द शो वाज नंबर 1 एंड जो शो में उस समय स्टोरी थी, जो उस समय कैरेक्टर्स थे, वो भी प्रीटी फेमस दे वो. सो एकदम से उन्होंने एक नया कैरेक्टर आया और वो उसको उन्होंने जो अनुपमा जो टाइटल रोल है हमारे शो का, उसके साथ उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया. हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, मतलब उनको भी मैं श्रेय दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा उसको पेश किया, इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया. और उसके बाद फिर मान बिकेम सो बिग. अगर आप मेरे रूम में देखें तो ये सब फैंस ने ही भेजा हुआ है सारा. एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि जितनी भी चीज़ें फैंस भेजते हैं, आई ऑलवेज पुट इट इन माई makeup room, because when I come here, when I sit on my seat and I am getting ready, it reminds me, it humbles me, it makes me feel कि there's a responsibility, a sense of responsibility which I have to return it to the fans by my work. क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं फैंस से मिलता नहीं हूँ, मिल नहीं पाता हूँ, या मैं उनको सेट पे नहीं बुला पाता हूँ, या उनसे रूबरू नहीं हो पाता हूँ, उनसे फ़ोन पे बात नहीं कर पाता. सोशल मीडिया पे थोड़ा नॉन सोशल ही हूँ, अगर मैं बोलूँ, थोड़ा नहीं बहुत. मुझे लगता है कि एज एन एक्टर माई जॉब इज़ टू एक्ट, डू माई सीन्स वेल, गो बैक होम, डू माई रियल लाइफ एंड माई फैमिली. तो थोड़ा सा मैं उसमें बोलूँगा कि आई एम स्टिल लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. वो मुझे नहीं आते हैं, पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मेरे सारे फैंस जो हैं मुझसे कनेक्टेड हैं. चाहे वो मान फैंस हों, चाहे वो अनुज कपाड़िया फैंस हों, चाहे वो अनुपमा शो फैंस हों. सो आई लव देम ऑल यार. इवन ट्रोलर्स, आई वुड से कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एज एन एक्टर, हम एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन, वी ऑल फील नाइस व्हेन यू आर प्रेज्ड, गिवन अवार्ड्स एंड तारीफ हो रही है, आप ट्रेंड कर रहे हो, अच्छा लगता है. लेकिन मुझे पता है कि बिकॉज आई एम एन एक्टर, व्हेन यू आर एट अ सर्टन लेवल, एट अ सर्टन पेडेस्टल, तो आपको अच्छाई भी मिलेगी, आपको बुराई भी मिलेगी, आपको ट्रोलिंग भी मिलेगी, एंड इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एक्टर. और इसमें मैं ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं ट्रोलर्स की ज़िंदगी में भी इतना इम्पोर्टेंट हूँ कहीं ना कहीं कि उनके सबकॉन्शियस में वो मेरे बगैर शायद कोई बात ना करें. भले ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो उड़ा तो मेरा ही मजाक रहे हैं. तो अगर आप 24 घंटे में 1 सेकंड भी मेरे पे ज़ाया कर रहे हैं आजकल की ज़िंदगी में, जो इतनी जद्दोजहद है, एवरीबडी सो बिजी इन देयर लाइव्स, अपनी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जॉब्स हैं. बट इवन इफ़ माई फैंस आर डूइंग इट, तो मैं उनका तो शुक्रगुजार हूँ ही, बट जो ट्रोलिंग भी कर रहे हैं ना, उनका भी हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ उनकी ज़िंदगी में कि आप 1 सेकंड भी मुझ पर ज़ाया कर रहे हैं. अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं होता तो शायद वो मेरे बारे में कुछ लिखते ही नहीं, मेरा मजाक भी ना उड़ाते. और रही बात, वो कभी कभी दे गेट ऑन टू फैमिलीज एंड माई वाइफ एंड माई अदर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. सो आई डोंट रिस्पॉन्ड. ठीक है, मैं एक्टर हूँ और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एक्टर है. एंड आपको पावर है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप बुराई करिए, आप हंसिए, जो करना है करिए, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जो पसंद कर रहे हैं वो आपसे इतने ज़्यादा हैं कि वो जो तराजू है उसमें ट्रोलिंग का जो पाला है थोड़ा कम है, और प्यार का पाला जो है बहुत ज़्यादा है. और ट्रोलिंग भी वही करते हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन 90% तो लोग, हमारी ऑडियंस सोशल मीडिया पे शायद ना भी हो, जो रियल, जैसे माई मॉम ओनली, आई वुड से कि वो भले ही उनको पता हो कैसे चलाना है, बट शी इज़ नॉट अ वेरी एविड यूज़र. माई डैड वुड नॉट बी एन एविड यूज़र. ऐसे जो घर के एल्डरली लोग हैं बड़े कम हैं, यंगर जनरेशन जो है वो. सो मैं उसी में खुश रहता हूँ कि आपने मेरी तारीफ़ की, थैंक यू सो मच. बॉलीवुड लाइव ने मुझे अवार्ड दिया बेस्ट परफॉर्मर, और इसमें जो नॉमिनीज थे उनमें से जीतना, और मुझे पता चला है बॉलीवुड लाइव ने बताया कि इसमें 5 ज्यूरी मेंबर भी थे, 5 or 6 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड 50% वोटिंग वाज फ्रॉम द फैंस. सो आई हैव गॉट द अवार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर. जनरली टीवी में एक्टर और एक्ट्रेस होता है, बट मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर ये कौन सा कैटेगरी है, तो इन्होंने कहा दिस इज़ अ कैटेगरी विच इज़ इट्स लाइक कैसे, हाउ शुड आई पुट इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज कि इट्स अक्रॉस एक्टर और एक्ट्रेस, तो सभी नॉमिनेट हैं उसमें, बट द बेस्ट परफॉर्मर. सो थैंक यू सो मच. एंड बड़ा अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि व्हेन यू गेट
acknowledged for your work, and all thanks to my producer, yaar, because uh, he saw Anuj Kapadia in me and he brought it out. So thank you, Rajan sir. This is for you, and आगे भी जो भी अच्छा होगा, it's all because of you. Also, your wife and your family, as you mentioned. So, how was their first reaction? Because, as you said, it was a 3-month role, and then Anuj became a huge sensation. So, what was their reaction knowing कि Anuj Kapadia is trending every day? Though you said you are not on social media, but you are everywhere. Yeah, I mean, I reshare, I repost all the stories जहाँ पे मेरे fans डालते हैं trending. कई लोग मजाक उड़ाते हैं उसका, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो इतना प्यार कर रहा है, जो मेरा मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप लोग इतना टाइम निकाल के इतनी सारी चीज़ें, आप ये जो रूम में जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, सब फैंस का प्यार है। एंड एक एक चीज़, यू नो, दे गो थ्रू सच पेन्स, यू नो, इफ़ यू सी द डिटेलिंग, कौन कराता है आज की लाइफ में यार ये सब। सो आई एम वेरी हम्बल्ड, यू नो, एज एन एक्टर, दीज आर द थिंग्स यू चेरिश। अब रही बात मेरी फैमिली की, तो दे ऑल वर वेरी हैप्पी, एंड आई हैव बीन एन एक्टर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम्स। आई हैव डन अ लॉट ऑफ टेलीविजन। अब मैं बेसिकली टेलीविजन एक्टर ही हूँ, अगर मैं बोलूँ। मैंने फिल्म्स नहीं की हैं, मैंने OTT नहीं किया है इतना, ना ही मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कोई ट्रेंड एक्टर हूँ। आई एम अ कॉर्पोरेट गाय। सो एज अ नॉर्मल आउटसाइडर, सिंपल बॉय फ्रॉम अ सिटी लाइक कानपुर, उसको इतना प्यार मिलना पूरी दुनिया से, एंड यू नो, हर एज ग्रुप से, आई मीन, इट जस्ट हम्बल्स मी, एंड इट, यू नो, मेक्स मी फील कि यार अभी तो बहुत मेहनत करनी है, अभी और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की इतनी आशाएं बढ़ चुकी हैं, आकांक्षाएं इतनी हैं। सो माई वाइफ इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, माई मॉम इज़ वेरी सपोर्टिव। इन दोनों ने ही मुझसे कहा था कि बेटा ये रोल कर लो, एंड आकांक्षा सेड, गौरव, आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट। तो आई थिंक जब घर की लेडीज़ आपको इतना सपोर्ट करती हैं, तो जाहिर सी बात है, व्हेन फीमेल एनर्जी इज़ विद यू, आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल। आई एम अ स्पिरिचुअल गाय, एंड आई ऑलवेज फील कि आपकी नेकी, आपका किया अच्छा कभी भी वेस्ट नहीं होता। भले ही आपको इमीडिएट रिटर्न्स ना मिलें, भले ही आपको वो अलग समझें लोग इनिशियली, बट इवेंचुअली आपके साथ अच्छा ही होता है अगर आप अच्छे हैं, और भगवान की दया से अच्छा ही हो रहा है। सो जैसे हमारे शो में बोलते हैं, थू थू थू। बिल्कुल। सो द बिग क्वेश्चन, वापस व्हेन इज मान मीटिंग अगेन नाउ? ये तो राजन सर ही बता पाएंगे, बिकॉज ही ऑलवेज, फ्रैंकली, मैंने हर इंटरव्यू में बोला है, बड़े मेरे इंटरव्यू कम ही दिए होंगे मैंने, बट ये 2.5 साल जो मेरे अनुज कपाड़िया के सफ़र रहा है अभी तक, तो हमको स्टोरीज नहीं पता चलती हैं। आई स्टिल डोंट नो कि कल क्या प्लान कर रहे हैं सर, या मुझे कुछ नहीं पता। अभी बस जो स्टोरी चल रही है, वो थोड़ा उन्होंने कहा है कि दे वांट टू शो कि, यू नो, मान के बीच में एक टिफ है, एंड अनुपमा वांट्स टू मेक इट बिग ऑन हर ओन, और उसके साथ अनुज नहीं है। तो ऐसी कोई स्टोरी वो दे आर ट्राइंग टू मेक, जो मुझे पता है अभी तक। पर वो आगे, ही ऑलवेज हैज़ एन एस अप हिज स्लीव, एंड पीपल लव मान यार। सो मैं जहाँ भी जाता हूँ, सब लोग मुझे यही बोलते हैं कि वी जस्ट लव अनुज एंड अनुपमा टुगेदर, वी लव अनुज, वी लव अनुज। तो बड़ा अच्छा लगता है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शो। भले ही मैं मेन लीड नहीं हूँ या जो नहीं है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा तो है जिसके बगैर कहीं ना कहीं, अब बीच में ये भी हो गया था कि लोग होते थे कि अनुज अनुपमा हम लोग साथ ही बोलते हैं नाम। एक तो नाम सर ने इतने अच्छे रखे हैं कि दोनों के अनु एंड अनुज, तो इट्स वेरी सिमिलर, यू नो। सो ये तो टैलेंट है हमारे DKP का कि वो आपको छोड़ने नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा ऑडियंस की उन्होंने नब्स पकड़ के रखेंगे, और इसीलिए राजन सर के शोज इतने चलते हैं, यू नो, दैट्स व्हाई पीपल वॉच इट एंड दे जस्ट लव इट फॉर years and years, and I'm very lucky to be a part of one of his such shows. So thank you so much, and thank you for giving us Anuj Kapadia. So thank you to our viewers for watching, and I hope you loved our interview with Gaurav Khanna.